Hello everyone, this is Abhishek Mahanti and you are watching Padarth Vigyan. So students, welcome to another lecture of the chapter Thermal Properties of Matter. In the previous two lectures, we had discussed about the thermal expansion of solids, which is of three types. The first one is linear expansion, the second one is superficial expansion, the third one is cubic expansion. And accordingly, we had discussed about three types of coefficients: alpha, beta and gamma. Alpha is known as coefficient of linear expansion, beta is known as coefficient of superficial expansion, and gamma is known as coefficient of cubic expansion. And then we had derived a relationship among these three quantities or three coefficients. The relation is alpha is equal to beta by 2 is equal to gamma by 3. So ajira video re ame discuss kariba about three new terms. The first one is specific heat, then heat capacity, and the last one is water equivalent. And these three quantities are very important while calculating the amount of heat received or amount of heat lost by a body. So let us understand what is the meaning of these three important terms. So first I am discuss kariba about specific heat, then I am discuss kariba about heat capacity, and last ko I am discuss kariba about water equivalent. So let's begin. So students, the first topic is what is the meaning of specific heat by specific heat capacity. Specific heat jaha specific heat capacity ra meaning exactly same. So to discuss about this important term, let me ask you few questions. Suppose ama pakhare duita object achi, they are made from the same material. Suppose I will take copper sphere or iron sphere. Suppose mo pakhare duita sphere achi, same material ro, suppose both of them are made from iron. First sphere mass hochi kete 5 kg and second sphere mass kete 8 kg. Okay, the mass of the first sphere is 5 kg and that of the second sphere is 8 kg. ठीक है, both are made from the same material, let us say iron. एबे में कौन करिबा, suppose both these spheres are initially at temperature 30 degree Celsius. ठीक है, both the spheres are at the same temperature 30 degree Celsius. Now we have to increase their temperature. आम केमती temperature increase करिबा ना by supplying heat energy to the body. आम जानिछे when the body receives heat energy, its temperature increases. तो आमको टास्क दिया गला जे we have to increase the temperature of the two bodies by 10 degree Celsius. ता माने 30 डिग्री रु आमे ताको 40 डिग्री पर्यंत ताको आमे हीट करिबा. सो डेल्टा टी केते आसीबो 10 डिग्री आसीबो. सिमिलरली फॉर द सेकंड बॉडी आमे सी सेम 10 डिग्री अमाउंट ताको आमे हीट करिबा. ता माने द टेम्परेचर ऑफ बोथ द स्फीयर्स विल चेंज फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस. सो यू हैव टू सप्लाई हीट. सो माय क्वेश्चन इज which body will require more amount of heat. आमे दुटा बॉडी नेचे different mass रो but same material रो and we are going to change their temperature by equal amount, that is by 10 degree Celsius. So the question is which body will require more amount of heat. The answer is pretty simple. जो body रा mass अधिक थिबो that body will require more amount of heat to get heated through the same temperature range. ता माने डेल्टा क्यू माने कौन, डेल्टा क्यू होची द हीट रिक्वायर्ड. ठीक अछि, डेल्टा क्यू इज द हीट रिक्वायर्ड. दिस डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी. आमे जेते अधिक मास नबा देन द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इज आल्सो मोर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. सपोज आम पाखरे दुईटा बॉडी अछि, दुईटा स्फीयर अछि ऑफ द सेम मटेरियल having the same mass. Suppose both of them are made from iron and their masses are also equal, 5 kg and 5 kg. ठीक है जी. Initially both the bodies are at the same temperature, that is 30 degree Celsius, and we have to increase their temperature. Suppose first body को कौन करिबी 30 डिग्री रो ताको हीट करिबी up to 40 डिग्री पर्यंत, but second body को हीट करिबी 30 डिग्री रो up to 45 डिग्री पर्यंत. तब फास्ट बॉडी पाई डेल्टा टी केते होची 10 डिग्री सेल्सियस. फॉर द सेकंड बॉडी
डेल्टा टी केते होची 15 डिग्री सेल्सियस ठीक अछि बोथ बॉडी रो मास सेम अछि एंड दे आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल बट ताकू हमें जो दिटा बॉडी से हमें अनइक्वल अमाउंट रे हीट करिबा तो माय क्वेश्चन इज व्हिच बॉडी विल रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ हीट टू गेट हीटेड द आंसर इज प्रीटी सिंपल जो बॉडी को आमे अधिक टेम्परेचर तार इंक्रीज करेबा से बॉडी अधिक हीट रिक्वायर करिवो ता माने फॉर द फर्स्ट बॉडी वी हैव टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस बट फॉर द सेकंड बॉडी we have to increase the temperature by 15 degrees Celsius. So obviously the second body will require more amount of heat to be heated. तो हमें कौन सीखले the amount of heat required by delta Q is also directly proportional to the change in temperature by delta T. जदि delta T रो वैल्यू अधिक होबो then delta Q रो वैल्यू अधिक होबो. Okay. Next question. Suppose I have two spheres. They have same mass. Suppose the first sphere has mass 5 kg, second sphere also has the same mass 5 kg, but they are made from different materials. Suppose एटा होची आयरन एटा होची कॉपर ठीक अछि हमें डिफरेंट मटेरियल रो कोन स्फीयर नैचे सेम मास रो and initially both of them are at 30 degree Celsius and हमें हीट करिबा so that the temperature will become 40 degree Celsius. ता माने ए केस रे कोन होची डेल्टा टी सेम आसुची मास सेम रहिला 5 kg and the change in temperature that is also equal which is 40 minus 30 equal to 10 degree Celsius. तो हम एठी मास को इक्वल कर देले डेल्टा टी को इक्वल कर देले बट मटेरियल अलग अलग अछि ठीक अछि तो ए केस रे जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड सेटा सेम रहिबो ना डिफरेंट रहिबो द आंसर इज डिफरेंट रहिबो ता माने जदियो दुटा को बॉडी रो मास सेम अछि एंड सेमानकर टेम्परेचर डिफरेंस बा डेल्टा टी भी सेम अछि बट द मटेरियल्स आर डिफरेंट दैट्स व्हाई आयरन जेतिक अमाउंट रो हीट रिक्वायर करिवो कॉपर इक्वल अमाउंट रो हीट रिक्वायर करिवो नाही से टिके डिफरेंट अमाउंट रो हीट रिक्वायर करिवो काहे कि ना दे आर मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल ठीक अछि तो तार मीनिंग हला कोन द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड also depends upon the nature of the material जेमते में कहले अल्फा बीटा गामा they depend upon the nature of material आयरन रो अल्फा अलगा आसीबो स्टील रो अल्फा अलगा आसीबो कॉपर रो अल्फा अलगा आसीबो सिल्वर रो अल्फा अलगा आसीबो ठीक सेमिति डिफरेंट मटेरियल रो माने जो हीट रिक्वायरमेंट आ सेटा भी अलग अलग आसीबो तो आमे से नेचर ऑफ मटेरियल को भी एई हीट रो कैलकुलेशन रे ताको हमें इंक्लूड करिबा केमति करिबा देखो तो हमें कौन लिखले एठी ना डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास डेल्टा क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा टी सो इफ वी कंबाइन देम आई कैन राइट दैट डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू डेल्टा टी दैट इंप्लाइज डेल्टा क्यू is equal to some constant that constant is c m into delta t ठीक है so if I want to replace the proportionality symbol by equal symbol then I have to multiply a constant quantity so delta q केते हला एटा हे जबो c m delta t that implies c केते हे जबो c हे जबो delta q divided by m delta t c हला केते ना डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय m डेल्टा t तो हमें एठी गोटे फार्मूला पाइले डेल्टा क्यू रो फार्मूला को पाइले c m into डेल्टा t हमें जो c लिखले c होची गोटे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तार ना कोन ता ना होची स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस specific heat capacity of the substance और मन रखो जे the value of C will be different for different materials water पाई value of C is different for any oil the value of C is different for copper C is different for iron C is different तो जदि में material को change करिबा ताले कोन हबो the value of C will also change तो आमे ए जो लिखले फार्मूलाटा डेल्टा क्यू इक्वल टू सी एम डेल्टा टी ए फार्मूला आमे केते यूज करिबा जदि गोटे बॉडी रो मास हमको जणा अछि से बॉडी जो मटेरियल बनाई छी से मटेरियल रो स्पेसिफिक हीट केते सेटा जणा अछि एंड आमे से बॉडी रो टेम्परेचर केते अमाउंट रे इंक्रीज करिबा बा डिक्रीज करिबा सेटा मालूम अछि
तो से बॉडी केते अमाउंट हिट एब्जॉर्ब करिवो बा केते अमाउंट हिट से रिलीज करिवो ताकू हिसाब करिवा पाई टू कैलकुलेट दैट अमाउंट ऑफ हिट वी हैव टू यूज द फॉर्मूला डेल्टा Q इक्वल टू CM डेल्टा T ओके। तो जब आम कहले सी कौन सी हूँ गोटे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ता ना हूँ स्पेसिफिक हिट कैपेसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस बा ऑफ दैट मटेरियल। सो हाउ टू डिफाइन सी आम केमती सी को डिफाइन करवा देख लुक एट दिस फॉर्मूला सी केते अछि सी अछि डेल्टा Q बाय M डेल्टा T। तो फ्रॉम दिस फॉर्मूला आई कैन डिफाइन स्पेसिफिक हिट। तो केमती डिफाइन करिवि सो रिमेंबर द डेफिनेशन द स्पेसिफिक heat of a material may be defined as the amount of heat required to raise the temperature of unit mass of a substance through 1 degree Celsius So in this formula in the numerator we have delta Q tamane the heat required, in the denominator we have mass into delta T tamane per mass per rise in temperature। तार मीनिंग है कौन जदि आम बाहर करवा व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर तार मीनिंग कौन 1 ग्राम बा यूनिट मास जदि एसआई रे कहबा 1 केजी नबा इन सीजीएस आम 1 ग्राम कहबा। तो डेफिनेशन कौन कहूँ ना इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। तो यूनिट मास रा मीनिंग कौन आइदर 1 केजी हो पारे एसआई रे और इन सीजीएस एटा 1 ग्राम हो पारे। तो जदि हमको पचरा गला जे व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर स्पेसिफिक हीट केते हबो तो आमे कौन करबा एठी आमे देखिबा जे जदि आमे कॉपर नौचे तो से कॉपर रो 1 केजी रो टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ेबा पाई केते हीट दरकार होचे और इन सीजीएस 1 ग्राम कॉपर रो टेम्परेचर आमे 1 डिग्री इंक्रीज करबा जेते हीट दरकार पड़िबो इन कैलोरी ताको आमे कहबा स्पेसिफिक हीट। मन रखता हीट एनर्जी रो यूनिट होची जूल इन एसआई कैलोरी इन सीजीएस ठीक अछि। तो यूनिट मास रो टेम्परेचर आमे 1 डिग्री बढ़ेबा जेते हीट दरकार पड़िबो दैट इज द स्पेसिफिक हीट ठीक अछि। तो जदि आमे डिस्कस करिबा व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट तो यूनिट रे आमे डिस्कस करिबा एसआई रे कोन हबो एंड सीजीएस रे कोन हबो। तो एसआई रे आमे एनर्जी को नियंती जूल रे मास रहिबो किलोग्राम रे एंड टेम्परेचर चेंज डेल्टा टी रहिबो केल्विन रे बा डिग्री सेल्सियस रे। मन रखता हो चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी केल्विन रे जहाँ डिग्री सेल्सियस रे भी सेम। तो आपको हम लिखि परिबा द एसआई यूनिट कोन आसीबो जूल केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स इन सीजीएस कोन आसीबो कैलोरी ग्राम इनवर्स डिग्री सेल्सियस इनवर्स। डेल्टा की होला कैलोरी एम होला ग्राम डेल्टा टी कोन चेंज इन टेम्परेचर बा डिग्री सेल्सियस। इन एसआई डेल्टा क्यू आसीबो जूल रे मास आसीबो किलोग्राम रे एंड डेल्टा टी आसीबो केल्विन रे। So this is the unit of the specific heat capacity in SI and in CGS ठीक अच्छे। तो इथे में कौन सिखले आम यदि फॉर्मूला देखा जे डेल्टा क्यू हूँ कहते CM डेल्टा टी तमाने डेल्टा क्यू इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पेसिफिक हिट तमाने जो सब्सटेंस रो स्पेसिफिक हिट अधिक थिबो दैट सब्सटेंस विल रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ हीट टू गेट हीटेड थ्रू ए गिवन रेंज ऑफ टेम्परेचर। तार सपोज इमेजिन कर आमे मटेरियल ए नहींचे मटेरियल बी नहींचे इक्वल मास रो ठीक अच्छे इक्वल मास रो आमे दुटा मटेरियल नहींचे एटा होची मास एम एटा होची मास एम एंड आमे कौन करबा बोथ बॉडी रो टेम्परेचर को आमे डेल्टा टी अमाउंट रे इंक्रीज करबा ठीक अच्छे। तार माने द चेंज इन टेम्परेचर विल बी सेम फॉर बोथ द बॉडीज किंतु स्पेसिफिक हीट ऑफ ए is
greater than the specific heat of B. CA is greater than CB. ताले डेल्टा QA केते हबो CA A डेल्टा T. डेल्टा QB केते हबो CB M delta T. तामाने the amount of heat required by the body A will be this much CA M delta T, and the amount of heat required by the body B will be CB M delta T. and जेहेतु CA होची CB रो ग्रेटर तो आमे कोन पाइबा एठी डेल्टा QA will be greater than delta QB. delta QA will be greater than delta QB. तामाने the body which has more value of specific heat that will require more amount of heat to get heated to the same temperature range. तो जदि आमे कंपेयर करिबा वाटर विथ सैंड पानी आउ बाली वाटर एंड सैंड आमे कंपेयर करिबा वाटर स्पेसिफिक हीट इज ग्रेटर दैन द स्पेसिफिक हीट ऑफ सैंड. जदि आमे 1 kg रो सैंड नबा आ 1 kg रो वाटर नबा ताको आमे हीट करिबा तबे कोन देखिबा एठी ना सैंड बहुत शीघ्र गरम हो जिवो काहे कि तार स्पेसिफिक हीट कम थाए सो शीघ्र गरम हो जिवो. बट वाटर कौन वाटर हैज ए लार्ज वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट सो से धीरे धीरे गरम हम तार माने जदि में वाटर आउ सैंड को इक्वल अमाउंट हीट सप्लाई करिबा देन आमे देखिबा जे वाटर टेम्परेचर कम इंक्रीज होईची बट सैंड टेम्परेचर अधिक अमाउंट रे इंक्रीज होईची. ठीक अछि. सो दिस इज ऑल अबाउट द कांसेप्ट ऑफ स्पेसिफिक हीट. सो जो सब्सटेंस रो स्पेसिफिक हीट जते अधिक थिबो सीए डेरी रे गरम हबो आ कोन से भी माने धीरे धीरे ठंडा हबो. किंतु जदि गोटे मटेरियल रो स्पेसिफिक हीट कम अछि त माने कोन से बहुत रैपिडली माने गरम हो जिवो एंड बहुत रैपिडली से कूल डाउन हो जिवो. सो दिस इज द बेसिक नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. अब मन रखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल्स. ठीक अछि. सो नेक्स्ट आमे देखिबा नेक्स्ट टर्म which is heat capacity. heat capacity तो एबे हम देखिबा जे heat capacity रो मीनिंग कोन. तो गोटे फंडामेंटल डिफरेंस मन रखो स्पेसिफिक हीट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर ए मटेरियल. जेमि मु कहली कॉपर मटेरियल पाई स्पेसिफिक हीट फिक्स थिबो, फॉर आयरन तार वैल्यू फिक्स थिबो, फॉर स्टील वैल्यू फिक्स थिबो. किंतु हीट कैपेसिटीटा मटेरियल उपरे माने गोटे मटेरियल पाई माने मेजर करा जायनी. हीट कैपेसिटी इज मेजर्ड फॉर ए बॉडी. ठीक अछि. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक हीट एंड हीट कैपेसिटी. सो लेट मी फर्स्ट राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ हीट कैपेसिटी. तो हम कोन लिखबे एठी हीट कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी may be defined as the amount of heat required to raise its temperature by 1 degree Celsius. आमे गोटे बॉडी रो हीट कैपेसिटी केम बाहर करिबा ना हीट कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 degree Celsius. आर मीनिंग कोन ता विषय में डिस्कस करिबा. सपोज मु गोटे एग्जांपल नउची वाटर. ठीक अछि. तो मन रखता वाटर रो स्पेसिफिक हीट केते हबो ना जदि मो पाखरे 1 ग्राम वाटर अच्छी 1 ग्राम वाटर टेम्परेचर मु 1 डिग्री इंक्रीज करेबे. व्हाट इज स्पेसिफिक हीट? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस थ्रू 1 degree Celsius. तो जदि मु देखिबे जे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इन CGS सिस्टम तो मु कोन नेबी मु नेबी यूनिट मास माने 1 ग्राम रो वाटर नेबी and I will raise its temperature by I will increase its temperature by 1 degree Celsius. तो मन रखता 1 ग्राम वाटर टेम्परेचर आमे यदि 1 डिग्री इंक्रीज करेबा we will require 1 calorie of heat.
ता माने वाटर स्पेसिफिक हीट केते हला 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक अछि। ताले जदि मो पाखरे गोटे कंटेनर रे 10 ग्राम वाटर अछि, केते ग्राम वाटर अछि 10 ग्राम वाटर अछि, तो मास केते कहला मास कहला 10 ग्राम। यदि मो पाखरे 10 ग्राम वाटर अछि एंड आई विल आस्क यू टू कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी ऑफ दिस 10 ग्राम वाटर, तो तार मीनिंग कौन ना ए 10 ग्राम वाटर टेम्परेचर को आमे 1 डिग्री इंक्रीज करबा तो केते हीट दरकार पड़िबो। तो जेमती मैं कहली जदि 1 ग्राम वाटर टेम्परेचर आमे 1 डिग्री इंक्रीज करूचे वी नीड 1 कैलोरी हीट, ताले 10 ग्राम वाटर टेम्परेचर आमे 1 डिग्री बढ़ेबा केते हीट दरकार पड़िबो वी विल रिक्वायर 10 कैलोरी हीट। वेरी सिंपल। ठीक अछि। ताले हीट कैपेसिटी केते हेला 10 कैलोरी हो गेला। ठीक अछि। तो एबे टी कंपेयर करो जे ट्राई टू कंपेयर द टू क्वांटिटीज हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तांको भितर डिफरेंस कोन अछि। आमे तले स्पेसिफिक हीट वर्ड यूज करूचे, आमे कहूचे यूनिट मास विषय डिस्कस करूचे, यूनिट मास रो टेम्परेचर में 1 डिग्री बढ़ेबा, किंतु आमे जते बडे हीट कैपेसिटी पे डिस्कस करूचे तो सेही केस रे आमे यूनिट मास वर्ड यूज करूने, आमे कोन यूज करूचे ना आमे जो बॉडी रो हीट कैपेसिटी बाहर करूचे से बॉडी रो मास जहा थिबो सेही मास रो टेम्परेचर में 1 डिग्री बढ़ेबा। ता माने 10 ग्राम वाटर रो टेम्परेचर आमे 1 डिग्री बढ़ेबा जेते हीट दरकार पड़िबो। मुदी 15 ग्राम वाटर नेबी, 20 ग्राम वाटर नेबी, 1 केजी वाटर नेबी, आई विल रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट। ता माने कोन वाटर रो स्पेसिफिक हीट समान रहउची किंतु हीट कैपेसिटी डिफर करिवो बा चेंज हबो, कहीं ना हीट कैपेसिटी डिपेंड करुचे मास उपरे। आमे जते अधिक मास नबा वी विल रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ हीट टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो आमे टी कोन करले आमे देखिले जे वाटर स्पेसिफिक केते 1 कैलोरी ग्राम इनवर्स डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो आमे दी 10 ग्राम वाटर नउचे तार हीट कैपेसिटी केते हबो 10 ग्राम इंटू 1 कली एठी तो केते 10 कैलोरी हो जिवो। ता माने आमे कौन पाइले ना हीट कैपेसिटी केते हो जिवो मास इंटू स्पेसिफिक हीट, मास इंटू स्पेसिफिक हीट। आमे जो कहले डेल्टा क्यू बाय एम सी डेल्टा टी एटा होची कौन सॉरी एम डेल्टा टी इज इक्वल टू द स्पेसिफिक हीट। तो जदि मैं करी डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी कर देबी एटा हे जिवो एम सी हे जिवो। ए एम इंटू सी आपको मैं कहबा हीट कैपेसिटी बा एस कहबा। तार मीनिंग कौन केते हीट दरकार पड़िबो टू रेज द टेम्परेचर ऑफ दैट बॉडी थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। एटा में यूनिट मास रो वर्ड यूज करबा नहीं, से बॉडी रो मास जहां भी थिबो सेही मास रो टेम्परेचर में 1 डिग्री बढ़ेबा। जदि मैं कहबी मो पाखरे गोटे कपर गोटे स्फीयर अच्छी से कपर स्फीयर मास होची 5 केजी, तो 5 केजी कपर रो टेम्परेचर मु 1 डिग्री बढ़ेबी जेते हीट दरकार पड़िबो दैट इज द हीट कैपेसिटी ऑफ 5 केजी कपर। तो ये तुम कंपेयर करो 5 केजी कपर, 10 केजी कपर, 15 केजी कपर, ऑल ऑफ देम हैव द सेम स्पेसिफिक हीट। कहीं कपर 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 नहीं मटेरियल सेम अच्छी तो स्पेसिफिक हीट सेम रहिबो किंतु हीट कैपेसिटी चेंज हबो। कहीं जदि अधिक मास थिबो हीट कैपेसिटी विल बी लार्जर, तो 5 केजी कपर हीट कैपेसिटी सबुठे कम रहिबो, तापर आसीबो 10 केजी कपर, तापर आसीबो 15 केजी कपर। So heat capacity is equal to mass into specific heat. So remember that heat capacity depends upon mass, but specific heat capacity does not depend upon mass. It is constant for a given material. ठीक अछि। आमे जदि आयरन नउचे आमे जेकोनसी मास रो आयरन हेगले भी समस्तकर हीट कैपेसिटी माने सॉरी समस्तकर स्पेसिफिक कैपेसिटी सेम रहिबो बट हीट कैपेसिटी चेंज हेबो। ठीक अछि। सो दिस इज द difference between specific heat and heat capacity. So now we will discuss about the next topic, the next term, which is water equivalent. The symbol is W. So let me first define what is the meaning of water equivalent. Water equivalent of a body may be defined as the mass of water in gram which requires the same amount of heat, to get heated through the same temperature
as is required by the given body. So let us try to understand the definition. Suppose मो पाखरे गोटे body अच्छी, that body is made from some material जार specific heat केते होची C, and we are talking in CGS unit. Okay, तो ये जो body नहीं ची, ये body रा mass केते, mass होची m, C is the specific capacity. Okay, तो मते गोटे टास्क दिया गला जे आई हैव टू फाइंड द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ दिस बॉडी. ओके, तो मुझे कौन करी, तो मुझे देखली ए बॉडी मास केते अच्छी, मास एम अच्छी एंड सी केते अच्छी, सी ला स्पेसिफिक हीट. एंड मुझे कौन करी, आई विल इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ दिस बॉडी थ्रू डेल्टा टी. सो डेल्टा टी हूँ कौन, यहाँ हूँ द इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर. ए बॉडी टेम्परेचर को मु डेल्टा क्यू एक्चुअली डेल्टा टी अमाउंट रे इंक्रीज करेबी. केमती इंक्रीज करेबी, आई हैव टू सप्लाई सम अमाउंट ऑफ हीट. तो से हीट रो वैल्यू केते हबो ना, एज पर आवर नॉलेज डेल्टा क्यू केते हिजबो सी इंटू एम इंटू डेल्टा टी. ठीक अछि, एंड हियर डेल्टा क्यू होची कैलोरी इन कैलोरी, सी होची इन कैलोरी ग्राम इनवर्स डिग्री सेल्सियस इनवर्स, एम होची ग्राम रे, एंड डेल्टा टी होची कोन इन डिग्री सेल्सियस. So all the quantities are expressed in CGS unit. तो मते एतिकी अमाउंट रो हीट दरकार पड़िबो टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ दिस बॉडी थ्रू ए टेम्परेचर केते डेल्टा टी. इज दैट क्लियर? ओके, सो माय टास्क इज टू फाइंड वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द बॉडी. तो वाटर इक्विवेलेंट मीनिंग कोन देखो, सी कोन कहिची ना, इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ वाटर इन ग्राम, the mass of water in gram which requires the same amount of heat to get heated through the same temperature. ता माने ए बॉडी को मु केते अमाउंट रो हीट सप्लाई करिछि, डेल्टा क्यू अमाउंट रो हीट सप्लाई करिछि. ए बॉडी रो मास केते m, एंड ए बॉडी टेम्परेचर केते अमाउंट रे बढ़िला, डेल्टा टी अमाउंट रे बढ़िला. सो आई विल आस्क यू जे सेही सेम डेल्टा क्यू अमाउंट रो हीट, सही सेम डेल्टा क्यू अमाउंट हीट मु केते ग्राम वाटर को सप्लाई करी, मु केते ग्राम वाटर को सप्लाई करी सच दैट से वाटर टेम्परेचर भी डेल्टा टी अमाउंट रे इंक्रीज होबो. वाटर टेम्परेचर भी केते डेल्टा टी अमाउंट रे इंक्रीज होबो. तो से जो मास पाइबी इन ग्राम दैट इज वाटर इक्विवेलेंट. तो एटा केम देखिबा, मन रखता वाटर स्पेसिफिक हीट केते ना 1 कैलोरी ग्राम इनवर्स डिग्री सेल्सियस इनवर्स. सीजीएस यूनिट रे बा सीजीएस सिस्टम रे वाटर स्पेसिफिक हीट केते ना 1 कैलोरी ग्राम इनवर्स डिग्री सेल्सियस इनवर्स. तो मु कोन पचारची ना, जेति की अमाउंट रो हीट मु ए बॉडी को सप्लाई करिची, सेति की अमाउंट रो हीट मु केते ग्राम वाटर को सप्लाई करिवि सच दैट वाटर टेम्परेचर भी से सेम डेल्टा टी अमाउंट रे इंक्रीज हो. माने ए बॉडी रो टेम्परेचर जेति का अमाउंट रे इंक्रीज हेची, ए वाटर रो टेम्परेचर भी से सेम डेल्टा टी अमाउंट रे इंक्रीज हो. सपोज द आंसर इज W ग्राम. माने कर मु W ग्राम वाटर को डेल्टा क्यू अमाउंट रे हीट सप्लाई करिवि, त माने बॉडी को मु जेति की हीट सप्लाई करिची से सेम हीट मु W ग्राम वाटर को सप्लाई करिवि. त माने मु m ग्राम रो बॉडी देची, W ग्राम वाटर नहीं. तो m ग्राम बॉडी को मु डेल्टा क्यू अमाउंट हीट सप्लाई कली, तार टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ला. से डेल्टा क्यू हीट को जदि मु W ग्राम वाटर को सप्लाई करी तो वाटर टेम्परेचर भी कौन हम डेल्टा टी अमाउंट रे इंक्रीज हम. देन जो W में पाइले दिस इज द वाटर इक्विवेलेंट. ता माने आम ये कौन करुचे, कंपेयर करुचे जे m ग्राम ऑफ दैट सब्सटेंस इज इक्विवेलेंट टू डैश ग्राम ऑफ वाटर बा W ग्राम ऑफ वाटर. दैट W इज द वाटर इक्विवेलेंट. तो देखो डेल्टा क्यू फॉर वाटर केते हिजबो, एटा वाटर मास में कर देछे W नहीं छे, तो m जगह में W लिखली. इन प्लेस ऑफ C हमरा फॉर्मूला कोन, डेल्टा क्यू होची mc डेल्टा टी बा cm डेल्टा टी. तो वाटर पे हमें मास W नहीं छे, व्हाट इज स्पेसिफिक हीट 1 एंड डेल्टा टी कोन चेंज इन टेम्परेचर. तो डेल्टा क्यू केते हला, डेल्टा क्यू हेगला W इंटू डेल्टा टी.
again I am repeating that all these quantities are expressed in CGS unit. तो ए हीट जहाँ ए हीटा भी एक्जाक्टली सेम आम बॉडी को जी हीट सप्लाई करते वाटर को हीट सप्लाई करें आम कंपेयर करदे आम लिखिपर डब्ल्यू इंटू डेल्टा टी इज सेम एज सी एम डेल्टा टी तो कैनसल हो डब्ल्यू के डब्ल्यू हो एम इंटू सी ठीक है डब्ल्यू के डब्ल्यू हो एम इंटू सी ताने एम इंटू सी माने मास इंटू स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू वाटर इक्विवेलेंट बट ये मास रहिबो ग्राम रे सी रहिबो सीजीएस रे माने कैलोरी ग्राम इनवर्स डिग्री सेल्सियस इनवर्स एंड डब्ल्यू इज आल्सो इन ग्राम तो मन पकेबा एम इंटू सी तमाने मास इंटू स्पेसिफिक हीट इज आल्सो नोन एज हीट कैपेसिटी तो मन रखता हीट कैपेसिटी जहाँ वाटर इक्विवेलेंट एक्जाक्टली सेम आम ये प्रीवियस माने टॉपिक रे डिस्कस करिचे जे व्हाट इज हीट कैपेसिटी ना हीट कैपेसिटी होची केते S इक्वल टू m इंटू सी S केते S होची m इंटू सी हीट कैपेसिटी इक्वल टू मास इंटू स्पेसिफिक हीट एंड हियर वी डिस्कस दैट द वाटर इक्विवेलेंट W इज आल्सो m इंटू सी तामाने वाटर इक्विवेलेंट जहाँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सॉरी हीट कैपेसिटी एक्जाक्टली सेम W एंड S आर इक्वल गोटे एग्जांपल कहूची सपोज मो पाखरे गोटे बॉडी अच्छी जो बॉडीर मास केते मास होची 10 ग्राम मास केते मास होची 10 ग्राम आउ ए बॉडीर स्पेसिफिक हीट केते 0.5 इज द स्पेसिफिक हीट तो पचरा गला जे ए बॉडीर वाटर इक्विवेलेंट केते हबो तो हमें कोन करबा एठी डब्ल्यू केते लिखि देबा डब्ल्यू लिखि देबा m इंटू सी तो 10 ग्राम अच्छी तार मास बॉडीर सी केते सी हो 0.5 सो आई एम नॉट राइटिंग द यूनिट ऑफ सी तर केते जोरा हो 5 हो ता माने 10 ग्राम ऑफ दैट बॉडी इज इक्विवेलेंट टू 5 ग्राम ऑफ वाटर ता माने जदि मु डेल्टा क्यू अमाउंट हीट 10 ग्राम बॉडी को देबी तार टेम्परेचर जेति की बढ़िला से सेम अमाउंट हीट जदि मु 5 ग्राम वाटर सप्लाई करिबी इफ सप्लाई द सेम हीट टू 5 ग्राम वाटर ताले से 5 ग्राम वाटर टेम्परेचर भी से डेल्टा टी अमाउंट रे इंक्रीज हो ता माने आमे कोन करूचे दुईटा माने गोटे बॉडी रो मास को आमे कंपेयर करूचे का सहित वाटर सहित ता माने 10 ग्राम ऑफ दैट बॉडी इज इक्विवेलेंट टू 5 ग्राम ऑफ वाटर माने 10 ग्राम ऑफ दैट बॉडी यस इज इक्विवेलेंट टू 5 ग्राम ऑफ वाटर सो दिस इज द मीनिंग ऑफ वाटर इक्विवेलेंट तो आज आम जो मैंने डिस्कस कले तीनटा आम टॉपिक डिस्कस कले गोटे हूँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी द सेकेंड वन इज हीट कैपेसिटी द थर्ड वन इज वाटर इक्विवेलेंट तो ये तीनटा टॉपिक रु आम गोटे मेन फॉर्मूला पाइले द फॉर्मूला इज डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी ये फॉर्मूलार इंपोर्टेंस कौन ना whenever we are calculating the heat absorbed by a body or heat lost by a body आम जानचे जदि गोटे बॉडी हीट एब्जॉर्ब करिवो इट्स टेम्परेचर विल इंक्रीज जदि गोटे बॉडी हीट लूज करिवो द टेम्परेचर विल डिक्रीज तो गोटे बॉडी केते अमाउंट हीट एब्जॉर्ब कला किंबा केते अमाउंट हीट से रिलीज कला बा लूज कला ताको हम हिसाब करिया पई यूज करिबा ए फॉर्मूलाटा जदि हमको बॉडीर मास जणा अछि से बॉडीर स्पेसिफिक हीट मालूम अछि एंड से बॉडी टेम्परेचर केते अमाउंट रे चेंज होला सेटा भी जणा अछि देन यू कैन इजीली कैलकुलेट व्हाट इज द हीट लॉस्ट बा व्हाट इज द हीट गेन्ड ठीक अछि एंड इन प्लेस ऑफ mc लिखि परिबी डेल्टा क्यू इक्वल टू s इनटू डेल्टा टी बिकॉज़ m इनटू c जहां s से व्हाट इज s हीट कैपेसिटी और आई कैन आल्सो राइट डेल्टा क्यू इक्वल टू w इनटू डेल्टा टी हम डिस्कस कले वाटर इक्विवेलेंट एंड हीट कैपेसिटी बोथ आर इक्वल so delta q is also equal to w delta t so depending upon the question data कौन देछि आमे यूज करबा any one of these formulas ठीक अछि जो तीनटा लिखली फार्मूला ता भितर any one formula we can use depending upon the data given in the question so आजिर टॉपिक रु आमे सिखले this important formula and in the upcoming classes videos I'll solve some numericals related to heat calculation आम देखिबा से सब न्यूमेरिकल रे आमे केमिति यूज करबा ऑल दिस फार्मूलास सो स्टूडेंट्स आई होप दैट ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द थ्री टर्म्स स्पेसिफिक हीट हीट कैपेसिटी एंड वाटर इक्विवेलेंट एंड आमे तेरे अधिक अधिक क्वेश्चन सॉल्व करबा योर कांसेप्ट अबाउट दिस टर्म्स विल बी मोर क्लियर तो ठीक अछि
पुणे देखा नेक्स्ट वीडियो रे विथ ए न्यू टॉपिक. सो टिल देन हैव ए नाइस डे एंड बाय बाय.